Hello friends, this is Veer from Saraswati Classes, Narol, Ahmedabad. Friends, in previous lecture of regression analysis, we have seen two kinds of method which I have denoted XY method and UV method. Now, in today's lecture, I have come up to you with a new method kind of question. Method is same, byx, regression of y on x. But as we know that we have divided all the sums into three categories. If the observations are big, then UV method. If they are small, less than 40, then XY method. Now today the third method is in which method is to be applicable in previous chapter, that is a product movement method. Same will be applicable over here. Now when this method is applicable, for that I am going to explain to you. As we know that whenever we are going to start a regression analysis, in previous two lectures I have discussed with you, at the same time I have told you that first of all we have to calculate the mean of both of the variables. They are to be calculated first of all. If your observations are so small, then you can apply XY method. If your observations are quite big, then you have to apply UV method. But whether your observations are big or small, but their mean comes in the exact form, that time you have to apply xi minus x bar and yi minus y bar method. Right? Today I am with you for the same kind of method over here. See, you have given the details. I have calculated the sum on the board. Just to clarify you, started this question. You have given two variables, variable x that is in meter, variable y that is in rupees. Data is given. It is the mixed combo, less than 40 value are also there and more than 40 values are also over there. So friends, as I have told you, the first step is to calculate the mean of both of the variables. So I have calculated over here. You can see, first of all, sum of x, that will be sigma x 252. On the other hand, it is 240. On these two bases, we will calculate the means. So x bar and y bar. Formula is there, x bar is equal to sigma x upon n, totaling 252 by 6. Now you should know from where this 6 has come from. So these are the 6 observations at all given over here. So we will divide with these 6 observations. So you will get only 42. That is your mean x bar. Similarly, y bar is there too, that is 40. Now, if your both of the means are x in exact form, then we will calculate xi minus x bar and yi minus y bar, as we have seen in the previous lecture. So x की जो वैल्यू आपको दी गई है उसमें से x बार को डिडक्ट करेंगे, सो हमें xi माइनस x बार मिल जाएगा. ठीक है, तो 42 में से 42 माइनस किया तो 0, 45 is the higher amount than 42, डिडक्ट किया will be 3 plus 3. Then 27 में से 42 माइनस किया तो माइनस 15. सिमिलरली हम क्या करेंगे, x की सारी वैल्यूज में से x बार को माइनस करेंगे और y की सारी वैल्यूज में से y बार को माइनस करेंगे. So that we will get xi minus x bar and yi minus y bar. It is not new. We have discussed in previous chapter this kind of questions 2 or 3 times. So it will be quite easy or understandable by you. I think so. So now go on. After calculating this one, as I have defined the previous chapter, जब भी हम ये क्वेश्चन गिनते हैं तो xi माइनस x बार और yi माइनस y बार की जो कीमतें होती हैं वो हमेशा जीरो आनी चाहिए. वो हमारी जीरो आ चुकी है. अब हम क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0 पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 5 जा माइनस 15, 15 2 जा माइनस 36, 8 जा 48, 6 1 जा माइनस माइनस प्लस 6. And 16 into 12 करेंगे तो it will be minus 192. Now by adding or subtracting these value will get minus 183 as a result of sigma xi minus x bar and yi minus y bar in multiplications. Now it's time to calculate the square value of xi minus x bar. As we know that there is no need of yi minus y bars, so we will not going to calculate that. Why should we calculate the extra burden? So ओनली एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे.
यू कैन सी 0 का 0, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 15 का 225, 636 माइनस 636, 12 का किया तो 144, सो दैट विल गेट दीज वैल्यूज। इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट हुआ। आपका टेबल कंप्लीट हुआ मतलब आपका 1 मार्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कहा है कि आपका टेबल पूरा करने से ही आपका आंसर या मार्किंग नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो फर्दर कैलकुलेशन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यू कैन सी द फॉर्मूला ओवर हियर, लीनियर रिग्रेशन y on x means by(x). Now you don't have to be bother about which method or which formula is to be put out, because हमने जो ये चार्ट तैयार किया हुआ है तो चार्ट में क्लियरली इंडिकेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई वाला नहीं है, यू वी वाला भी नहीं है, तो कौन सा वाला है, एक्स आई माइनस एक्स बार वाली मेथड है। तो वील अप्लाई द सेम मेथड ओवर हियर, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे। नाउ व्हाट टू डू, अब जो वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं 183 और सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर 450, उसे डिवाइड करेंगे तो वील गेट बी वाई एक्स दैट इज माइनस 0.41। नाउ इट्स टाइम टू लीनियर रिग्रेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस y on x। क्या फॉर्मूला था उसके लिए, सो y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, एज यूजुअल वी हैव कैलकुलेटेड बिफोर दिस वन, a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार। सो हमारे पास y बार भी है, x बार भी है और b मतलब by(x), तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। इन सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करके हमें a की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 57.08। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, y कैप इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ a 57.08 प्लस b की वैल्यू कितनी है 0.41 माइनस में है और x कितना, तो वो x है ही हमारे पास, तो 57.08 माइनस प्लस माइनस 0.41x, राइट। नाउ अब तक जो हमने क्वेश्चंस गिने उन सब क्वेश्चंस के अंदर हमें ये देखना था या देखते थे कि हमारा आंसर यहाँ ओवर हो जाता था, और मैंने आपको उस टाइम भी कहा था इफ x की वैल्यू अगर आपको दे दी जाती है तो आप क्या करोगे, यहाँ मैंने दी हुई है इफ x इज इक्वल टू 40 देन व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। तो देखा हमने जहाँ आपका x दिखेगा वहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, 40 लगा देंगे और उसका प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करके जो कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40.68। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि y की यहाँ वैल्यू किस में दी हुई है, रुपीज़ में। तो अगर आपकी y की वैल्यू रुपीज़ में दी हुई है तो लास्ट में जब हम y की एस्टिमेट वैल्यू रखेंगे तो वो भी रुपीज़ में ही रखेंगे। सपोज करो आप ये नहीं रखते हो और आपने पूरा आंसर राइट है और इन द बोर्ड एग्जामिनेशन यू आर स्कोरिंग फुल मार्क्स, 100 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, द एग्जामिनर विल गोइंग टू कट योर 1 मार्क्स अगेंस्ट दिस रुपीज़ और सिंबॉलिक वैल्यू, ठीक है। इसलिए आपको एक खास ध्यान रखना है कि जब भी x बार और y बार में कोई x और y की कोई जो वेरिएबल्स हैं उनकी कोई अगर वैल्यूज़ दी हुई हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपको उसकी वैल्यू फाइंड करने का आएगा तो आप उस सिंबल को खास रखेंगे, ठीक है, सो दैट आपके मार्किंग कट होने के चांसेस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस मेथड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सबको गिनने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, सवाल समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको सवाल समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ साथ ही साथ जो बाजू में बेल आइकॉन बटन है उसे दबाना ना भूलें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। विद दिस वन आई एम क्लोजिंग माई लेक्चर। जल्दी आपके सामने दूसरे वीडियो को लेकर मैं हाजिर होऊंगा। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।